پرامن انقلاب پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضل ایوبی۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جس دن 50 لاکھ مکان دینے کا وعدہ کیا تو عوام کی خوشی دیر نہیں تھی۔ جہاں خوشی کے آنسو آئے وہاں ایک کرب کی ٹیس بھی اٹھی، جس میں عوام کو سیاستدانوں کے نعروں پہ اور وعدوں پہ اعتبار نہیں تھا۔ وہ عوام یہی سوچ رہے تھے کہ جیسے پیچھے سیاستدان آج تک نعرے لگاتے رہے ہیں اور دعوے کرتے رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی انہی میں سے سیاستدان ایک ہیں جو صرف نعرے لگا رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ مہنگائی بھی کہاں پہنچ چکی ہے، ڈالر کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں، گیس پانی بجلی کے بل اتنے ہو گئے ہیں جو عام آدمی کا جو بجٹ ہے پورا کرنے میں وہ دن رات کوششیں ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے بجٹ کو پورا نہیں کر پاتا۔ کیا یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا؟ مہنگائی غربت ہی عام آدمی کا مقدر رہے گی؟ کیا اس سسٹم کو بدلا جا سکتا ہے؟ اگر بدلا جا سکتا ہے تو کس طرح؟ اس پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار خان صاحب۔ آپ انجینئر بھی ہیں اور سابق ایم ڈی واسا بھی رہ چکی ہیں، اور افتخار خان صاحب نے ہی یہ پرامن انقلاب کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ایک سسٹم واضح کیا ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ملک اسرار احمد صاحب، آپ نائب صدر ہیں ایسوسی ایشن آف کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شاہین ورک صاحبہ جو تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی آج گفتگو کریں گے۔ افتخار خان صاحب، پہلے یہ بتائیے گا جو آپ نے کتاب لکھی ہے سسٹم جس میں آپ نے واضح کیا پاکستان میں لانے کے لیے، پاکستان کی عوام کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دراصل یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ ہمارا ملک کیوں ترقی کرتا ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں ہم، اور ترقی کیوں نہیں کرتا ہمارا ملک؟ ترقی نہ کرنے کی کیا وجوہات؟ اس پہ میں نے پھر ورک کیا 15-20 سال، اور اخیر جا کے اسٹیج پہ پہنچا کہ جی ہمیں ظاہر ہے کہ ترقی کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت۔ اگر کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کرے گی، اس سے صرف آمدن، یہ مہنگائی بڑھے گی کیونکہ وہ ٹیکس لگائیں گے پیسے اکٹھے کرنے کے، مہنگائی بڑھے گی۔ تو لہٰذا آمدن بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اس پہ میں نے کام کیا، اور اس سے پہلے یہ چیز معلوم کرنی تھی کہ کتنی آمدن بڑھنی چاہیے۔ اس وقت 20-25-30 کروڑ روپیہ سرمایہ ہے، اور 55 کروڑ تک چلے گی سر، اور باقی تو خیر لون چھوڑ کے پیسے وہ تو خرچے میں آ جاتے ہیں نا، جی جی 20-30%، 50% تو آپ کا ڈیپوزٹ کا بجٹ ہے، وہ آپ چھوڑیں کتنی تک چلے گی چلی گئی۔ اصل میں 100 کروڑ روپیہ نیٹ آنا، یہ میں نے کیلکولیٹ کیا۔ کس طرح کیا؟ میں نے ہر مسئلے کا حل نکالا اور اس پہ کتنا خرچ آئے گا، اس پہ 5 سالہ منصوبہ بنایا۔ تعلیم، صحت، زراعت، انڈسٹری، کوڑا کرکٹ، جتنے بھی ہیں ہمارے محکمے اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جسے پیسے کی ضرورت تھی، وہ ہم نے وہ سسٹم بھی وضع کیے اور اس کے لیے پیسے نکال کے پھر دیکھا 5 سال کے لیے کتنے پیسے چاہیے، وہ 500 کروڑ کی اماؤنٹ نکلی۔ ایسٹیمیٹ یہ 1 منٹ میں تو نہیں نکلا، مجھے 15 سال کی یہ فگر نکلی۔ کام کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، پھر 100 کروڑ روپیہ سالانہ، 100 کروڑ روپیہ سالانہ آمدن ہوگی تو ہمارے سارے مسئلے آج سے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا میں نے اسی پہ سوچا، اور بالکل میرے پروگرام یہ کہتا ہے کہ 100 کروڑ آمدن کس طرح ہو سکتی ہے۔
اس کے لیے میں نے پرانے ٹیکس ختم کر دیے سارے. ٹیکس جو ہیں یہ مہنگائی لاتے ہیں. ٹیکس ختم ہو جائیں گے تو موجودہ پرائز میں سے بھی ٹیکس ختم ہو کے قیمتیں آدھی آ جائیں گی. دنیا میں آج تک کوئی قیمت کم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسی سسٹم میں چل رہے ہیں سارے جس پہ ہم بھی چل رہے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا. پیچھے اوباما میں آخری تاریخ آخری جو اسپیچ تھی اس پہ صاف کہہ دیا کہ یہ جب تک کہ ٹیکس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 40% جو ہے لاس ہو جاتا ہے اس کا امریکہ کا الیکشن میں 40% کور نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے امریکہ میں یہ حال ہے تو ہم تو کسی بات ہے ہی نہیں ہماری سوچ. تو لہذا اب وہ میں نے پھر ایک سسٹم کیا جس سے 100% آمدن گارنٹیڈ ہے. یعنی آمدن ہو سکتی ہے. ہاں ہو نہیں سکتی, گارنٹیڈ ہے کہ اس سے میں اب یقین سے کہوں 200 کروڑ ہوگی اور اگلے 5 سال کے بعد یہ 15 کروڑ ہوگی, 1500 کروڑ. کیونکہ جوں آپ ترقی کریں گے آپ کا خرچہ آپ زیادہ کریں گے. جب خرچے زیادہ کریں گے تو اس سے ایک دم آپ کے آمدن والی کیونکہ 20% آف دا پرچیز آپ نے چارج کرنا ہے. اور وہ جو ہے ایڈوانس ایکسوس ہو جانا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک نے ٹوکن دینے پیسے لے کے اس نے ٹوکن دے دینے, رسیدیں فری ملنی ہے, گورنمنٹ نے پرنٹ کرنی ہے وہ رسید. اب بات صرف اتنی ہے کہ میں نے اگر یہ ٹاپ بازار سے خریدنے جانا ہے تو میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اس کی رسید دوں. میں بچوں کی فیس دینے جا رہا ہوں تو اس سے بھی رسید دی. انہوں نے بھی وہاں پہ میں ٹیکس دوں گا اپنی بچوں کی فیس کے ساتھ. میں شادی کے لیے بچی کی شادی کے لیے ہال بک کرواتا ہوں تو وہاں پہ بھی میں ٹیکس دوں گا. وہ خرچے ہیں نا میرے. یعنی کہ آپ چاہتے انوائس مانیٹرنگ سسٹم, ہر جو خرچہ کرے گا انسان وہ ایک فقیر جو ہے مانگ کے اور وہاں پہ 15 روپے کی وہ کون آئس کریم لے کے کھاتا ہے تو اس نے بھی ٹیکس دے دیا ہے اس فقیر نے. سسٹم یہ ہے کہ آپ نے غریب آدمی کو جو سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے جو رات کو وہیں سوتا ہے, سارا دن مانگ کے پیٹ کرتا ہے, رات کو سوتا ہے, بارش آ جاتی ہے تو کہیں شیڈ میں چلا جاتا ہے, اگلے دن پھر وہیں آتا ہے. اس کو میں نے اپنا گھر دینا ہے 2000 روپے مہینے پہ, اس کو میں نے 25,000 کی نوکری دینی ہے اس کے اپنے گاؤں میں جہاں لاہور میں نہیں, جہاں وہ پیدا ہوا ہے, جہاں اس کے بچے ہیں, کام جہاں کر رہا ہے, بچے اس کے پیچھے رہ رہے ہیں, نہ کوئی تعلیم ان کو مل رہی ہے, نہ صحت کا کوئی مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ بیچارہ کما کے پیسے بھیج رہا ہے, چل رہا ہے. وہ اپنی جگہ نوکری کرے گا, وہیں اس کو سکول ملے گا, اور سکول ایچسن کالج کے اسٹینڈرڈ کا, ایچسن کالج کے اسٹینڈرڈ کا. میری باتوں پہ حیران ہوں گے. جی جی. تو لہٰذا میں نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے جس میں آمدن 100% ہوگی اور سارے مسئلے آہستہ آہستہ نہیں بلکہ اسی دن حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر میں کہتا ہوں تعلیم تو تعلیم کے پرائمری اسکول بننے شروع ہو جائیں گے. پرائمری اسکول جو بننا ہے, ہمارا پرائمری اسکول کیا ہے, ہمارا جو اسکول ہے نا سرکاری اسکول 3 منزلہ بلڈنگ میں میٹرک کا اسکول چل رہا ہے. میرا پرائمری اسکول 150 کنال کے اوپر جس پہ کتنی گراؤنڈ, کتنے کمرے, کتنے سوئمنگ پول, کیا کیا ہر چیز تمام دی ہے. بچوں کے ایکٹیویٹی کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں. بچوں جب بچی آپ کی پہلے دن داخل ہوگی نارووال میں اسکول میں, آپ
बोल रहे हैं ना, तो बहुत से आप बोलोगे तो वहां पे उसको स्विमिंग भी पहले दिन करेगी, क्रिकेट भी खेलेगी, हॉकी भी खेलेगी, जिम्नेजियम भी करेगी पहले दिन। आपकी बच्ची, बच्चा नहीं बच्ची भी, और वो शौक से स्कूल भी जाएगी। तो वो फिर शौक से स्कूल जाएगी, वहां उसकी वर्दी है, वहां उनकी फिर 5 जुबानें सीखेंगे बच्चे। एक जिनमें से सबसे ज्यादा अरबी है, अरबी सीख लिया तो फिर रियासत मदीना फिर बनेगा। सही है। खान साहब आपका मौक़िफ़ आ गया पूरा। हाँ जी, अब आप मलिक इसरार साहब, इमरान खान साहब ने जब नारा लगाया, लोगों में एक खुशी देखनी थी वाकई उनकी, चलो जी मकान तो मिलेंगे। जी जो 40 साल से हुकूमतें आ रही थी जा रही थी, जी लेकिन उन्होंने एटमी धमाका करके पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक में नहीं दुनिया में मनवा दिया। जी एटमी ताकत बन गया पाकिस्तान। जी उम्मीद थी इमरान खान साहब आए हैं, मुआशी धमाका करेंगे जी और जो महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा हो गया। जी इफ्तिखार खान साहब ने सिस्टम लिखा है आमदन के बारे में, 100 खरब आमदन मुमकिन है गारंटी के जी साथ। जी आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि मौजूदा बजट हमारा आज तक 55 खरब पे पहुंचा है, उसको भी पूरा करने के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल के बुरवे कर लाती है, उसके बावजूद भी वो पूरा नहीं होता। ये आमदन मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इफ्तिखार साहब की किताब डिटेल पढ़ी है, इन डिटेल पढ़ी है। जी जी इनका जो बेसिक सोर्स है, सबसे पहले इनका है एक सेक्टर। जी जी सेक्टर तो जो है वो 15,000 से 20,000 की आबादी पे जी मुनहसर है, 22 करोड़ आवाम को 15-20 हज़ार की आबादी में डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया जी जी जाएगा। और उसमें बाकायदा इन्होंने वो जो हमारे रेवेन्यू में हम कहते थे और अभी कहते हैं कि गांव में एक लाल लकीर होती है। जी जी लाल लकीर को आप कह लीजिए अर्बन एरिया। जी जी उसमें अर्बन एरिया में आपका जो है घर होंगे, आपके हमारा सिर्फ घरों तक मुनहसर है। बाकी जो ये चीज़ें जो हैं वो जो जिस तरह खान फरमा रहे हैं कि इसमें एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, स्पोर्ट्स होंगी, ये फिर ऐसा सिस्टम होगा कि गवर्नमेंट को वो जो लाल लकीर के अंदर ज़मीन है सारी वो एक्वायर करनी पड़ेगी। जी जी एक्वायर करने के बाद उसमें इन्होंने लिखा है कि जी जो ज़मीन बच जाएगी और उसमें जो 8 कनाल पे मुहित होगी, जी जी 8 कनाल की ज़मीन जो है उस पे आप बनाएंगे, एक गवर्नमेंट जो है वो अपने दफातर बनाएगी कह लीजिए जी आप। जी ठीक है जी, उसमें सब दफातर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तमाम दफातर आएंगे, जी जी हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग उस पे आएंगे। खासा वाली तजवीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये कामयाब हो सकती है, लेकिन इसमें हमें बहुत सी तगोदौ करनी पड़ेगी। जी जी सबसे पहले हमें जो है अपनी आबादी, जो कि हम कभी 20 करोड़ कहते हैं, कभी 20.5 करोड़ कहते हैं, हमें उसका पहले सही तयन करना पड़ेगा आबादी के। फिर उस आबादी में हमारे अर्निंग हैंड्स कितने हैं, वो 20 करोड़ में सारे तो नहीं ना अर्निंग है। जी जी हमारे मुआशरे में एक घराना कम अज कम 5 नफूस पर मुश्तमिल है। जी जी उसमें बच्चे हैं, बीवी है, खामंद है, ये हैं उसके। उसके अखराजात इन्होंने बताए हैं, आप उसे 25,000 रुपया महाना दें तो वो उसमें अखराजात पूरे करेगा। और सबसे पहले उसमें इन्होंने क्या रखा है कि आप 2,000 रुपये महाना किस्त देंगे मकान की, जी जी और उसमें 1 लाख रुपया जो है वो मुझे अगर मकान लेना है तो मुझे देना पड़ेगा। जी जी लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो हुकूमत देगी। मेरे वसाइल तो हुकूमत देगी। वो एक सिस्टम इन्होंने बनाया कि वहाँ पे एक एल्डर्स की एक मीटिंग होगी, अदालत होगी, जी जी वो डिग्री देगी, उसके बाद ये सब कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि हम इसे यकदम जी जी यक जुम्बश कलम हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। जी जी हमें आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। और उसका बेस जो बेस है वो है बुनियादी
जिसे हम अयूब के दौर यूसुफ के दौर के बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, जी जी। अब यूनियन काउंसिल कह लीजिए। अब यूनियन काउंसिल की आबादी, ये आपकी नज़र में क्या एलिमेंट आपको नज़र आता है? ये करप्शन नज़र आती है या इस सिस्टम को राइज करने में मुश्किलात हुकूमत को आपकी नज़र में क्या नज़र आती है? मुश्किलात तो जो है जी, सबसे पहले करप्शन वाली बात तो नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अब जब गवर्नमेंट ने लेना है और सेक्टर ने लेना है सारा काम, तो उसमें करप्शन वाली बात नहीं, उसमें मुश्किलात ये होंगी कि इसकी सब डिवीजन करने के लिए सेक्टर वाइज उसे बनाना, जी, जी। उसे चलाना, जी, जी। ये हमारे लिए सबसे पहला मरहला ये पहला मरहला ये होगा। जी जी। फिर दूसरे, आपको इतने जॉब्स क्रिएट करने पड़ेगे जी, जी। कि जितने भी आपके अर्निंग हैंड्स जी, हैं जी। वो आपको कम से कम 25,000 रुपया दें। जी जी। ठीक है जी। खान साहब से इनसे अभी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा जी कि नहीं जी, उसमें वो एक घर में अगर 2 बच्चे हैं तो वो भी कमाते हैं। जी जी। लेकिन उनका जो आप देखें तो उनका कमाने का जो जरिए आमदन या कितना बनता है, जी जी। वो हार्डली, अब घर में कोई बच्चा मेरे घर में कोई काम करता है तो मैं उसे 10 या 12,000 रुपए दूंगा। जी जी। मैं तो उससे ज्यादा नहीं दे सकता। जी जी। अब 10 से 12,000 रुपए में तो उसका घर नहीं चलता। जी जी। खासकर आजकल के दौर में जिस तरह हम पे ये बर्डन जा रहा है, अखराजात बढ़ गए हैं, हमारे पे टैक्सेस आ गए, हम पे कर्जे आ गए हैं। मलिक साहब उसमें तो ये एलिमेंट है ना, ये देखो उन्होंने कहा वो जब उनके सिस्टम को राज करेंगे तो महंगाई तो वैसी टूट के कमर गिर जाएगी उसकी, 50% से वैसी महंगाई नीचे आ जाएगी। जहाँ आज हम 2000 का एक चीज़ खरीदते हैं वो खुद ब खुद 1000-1200 रुपये आ जाएगी। अखराजात तो खुद ब खुद कम हो गए। सर मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता बेटूरी का। ठीक है, इससे यार आप कहना महंगाई में कमी नहीं आएगी, महंगाई में इतनी कमी नहीं आएगी। जी जी। लेकिन सबसे पहले हमें अपने तमाम सोर्सेज को पूल करना पड़ेगा। जी जी। वो मैं मलिक साहब दोबारा आपसे पूछूंगा आगे वो सोर्स कौन से हैं जिनको अपना कर हम वाकई सिस्टम पे आ सकते हैं। लेकिन मैडम ब्रेक से जाने से पहले मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। इस मौजूदा हालात में 5 मरले का मकान 7 लाख में मिलना एक ख्वाब ही है। जी बिल्कुल। जिसने खास साहब ने किताब में लिखा है 7,17,000 का एक मकान डबल स्टोरी वो भी मिलेगा और 2000 किस्त पे। इस मौजूदा हालात में महंगाई के दौर में क्या इस तरह मुमकिन है? लेकिन आपसे जवाब देते हैं ब्रेक से बाद। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन जी, मैडम शाहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं इसमें ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने खान साहब की जो है बातें सारी सुनी और इसके ऊपर अमल करना एक मुश्किल काम है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब को पुराने पॉलिटिकल लीडर्स की ज़रूरत नहीं है। जी जी। न्यू आइडियाज़ रखने वाले, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने वाले और अच्छी सोच, जो कि एक मिडिल क्लास अवाम के बारे में सोची। ये नहीं कि आप अपनी सोसाइटी के लोगों के बारे में सोचते जाएं, ठीक है, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाते जाएं। अगर ये सब होता रहा तो ये ख्वाब नहीं, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जी जी। लेकिन ये इस बात का यकीन किया जा सकता है, मैंने इस बुक को स्टडी किया है, मैंने इसके आइडियाज़ देखे हैं। उसके लिए पुरानी हुकूमतों से उठा के अपने साथ बड़े बड़े नाम जो वज़ीर आज़म साहब ने बिठाए हुए हैं, अगर उनकी बजाय ऐसे सोच रखने वाले लोग वज़ीर आज़म के साथ, जी बिल्कुल, इनकलाबी सोच, आवाम के बारे में, गरीब मिडल मैन के बारे में सोचने वाले लोगों की एक 5 रुकनी टीम की वज़ीर आज़म साहब अपने साथ बिठा ली, तो ये नामुमकिन नहीं है। जी जी। आपका मतलब जब तक नेक नियति सामने नहीं होगी, जब तक ये सिस्टम राइज नहीं हो सकता। जब तक गरीब मजदूर हैं, जो लोग अभी हमारे बैठे हुए हैं, आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, लोग इस वक्त एक रूम का घर 10,000 रेंट पे लेकर, और उनकी अगर 20,000 भी वज़ीर आज़म साहब उनकी सैलरी लगा देते हैं, उसका उनको क्या बेनिफिट है जी? वो अपने बच्चों की फीस पे कर रहे हैं, एक बच्चा है उसकी वो 5,000 फी पे कर रहे हैं, 10,000 रेंट पे कर रहे हैं, तो वो 7,000 तो उधर चला गया। तो उसमें वो क्या खाएगा, क्या बच्चे को देगा, क्या उसका मुस्तकबिल होगा? इफ्तिखार खान साहब, मैंने जिस तरह कहा
जी हाँ, वो उसका जो बजट है वो भी नहीं पूरा होगा। एक मलक साहब ने एक सवाल छोड़ा था, वो कह रहे हैं ये महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही सिस्टम में, आप इसका जवाब मैं दें। दोनों का बड़ा ब्रीफली जवाब देता हूँ। जी। बिल्कुल मोहतरमा ने सही ये कहा है कि ये सही नजर नहीं आता। करंटली जो घर बाजार में या मार्केट में बैंक में 5 मरले का 1.5 करोड़ जी। का मिल रहा है, मैं 7 लाख की बात कर रहा हूँ, तो बात तो सोचने वाली कहीं ना कहीं तो खराबी है। खराबी वैसे कहीं नहीं, असल में सबसे पहले तो ये है कि घर बनाने में मुश्किलात के कहाँ कहाँ पैसे लगते हैं, जी क्यों नहीं बनता। एक सबसे पहले है कि जमीन सस्ती हुई है। जी जी जमीन इतनी महंगी हो गई है, इतनी कि आप सोच नहीं सकते। जी जी जमीन जो इस वक्त लाख रुपए मरला है वो 6,000 पे आनी चाहिए, 16 गुना नीचे। ये उनकी कैलकुलेशन कीमत 16% नीचे आएंगे 16% नहीं, 16 गुना। गुना। जी जी 16 6,000 पे। और ये 6,000 की वो प्राइस है जो कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे बचपन में मेरे वालिद साहब ने कहा मुस्लिम टाउन में बेटे जगह मिल रही है 5 रुपए मरला। जी जी क्वार्टर बन गए थे ये गवर्नमेंट के, आगे पाबंदी नहीं थी तो वहां पे मिट्टी उड़ती थी। मेरे वालिद साहब कहते मतलब जगह मिलती मालूम है तो बात ये है कि उस 5 रुपए को बढ़ा के अब 6,000 बना हुआ है। हमने उसको अपनी गलत पॉलिसियों से उसे लाख रुपए पे लेके उसे वापस लाना है। एक तो ये जी मैंने इसमें हाल ये किया है, मैंने कहा ये गवर्नमेंट उसको नीचे करेगी। एक मैंने जी, पॉलिसी दी है जमीन की। जी जी जमीन की पॉलिसी ये है कि अगर ये एक गांव है तो गांव के इर्द गिर्द मैंने लाइन लगा दी है, जी, ठीक है। जितनी जमीन की जरूरत है वो उसमें ले ली है और वो सारी जमीन गवर्नमेंट की हो जाएगी और उसके बदले तो मेरा एक मुरब्बा उसमें आ जाता है। तो मुझे गवर्नमेंट एक मुरब्बा जमीन उस दायरे के बाहर खरीद के देगी। जी जी अब वो जमीन जो सस्ती है आ गई है उसके पास, उसको 32 खरब रुपए मैंने उसके 5 साल के लिए रखे हैं घरों के लिए, इन्हीं कामों के लिए, जमीन खरीदने के लिए। गवर्नमेंट के पास अपनी बेबहा जमीन है, जी जी बेबहा जमीन है, बड़ी बड़ी महंगी जमीन है। और सजाओ मेरे रिश्तेदार हैं वो एक नेवी में है, वो सुन रिटायर होने वाले हैं, वो सुना है उन्हें एक प्लाट दे रहे हैं गवर्नमेंट वाले जिसकी 72 करोड़ रुपया वैल्यू। तो मैं क्या माई खैर कहने का मकसद ये है कि जमीन की कॉस्ट कम करेंगे, दूसरी सूद सिफर करेंगे। सूदी निजाम कर्जा है का ना, नहीं कर्जा लेना है ना, कर्जा लेना देना है ना, सूद सिफर। तीसरी चीज कीमतें डाउन करने के लिए मैंने सारे टैक्सेस खत्म कर दिए। खत्म करने से तो अब देखा थोड़ी सी चीज देखी कि एक पान है, बड़ी बेसिक चीज पे मैं जाता हूँ। पान है जो इस वक्त 20 रुपए से लेके 70 रुपए तक मिल रहा है मुख्तलिफ दुकानों में, और क्वालिटी उनकी किसकी अच्छी है किसकी अच्छी नहीं। अच्छा, अब वो सूरत हाल ये है कि उसमें छालिया भी बाहर से आई हुई है, पत्ता भी बाहर का है, कत्था भी बाहर का है, उसमें तंबाकू भी बाहर का, हर चीज बाहर की है जिसपे टैक्स लगा हुआ है, इम्पोर्ट होके आई हुई है। तो वो इतना महंगा ये सब टैक्स उनपे 0 हो जाएंगे तो 5 रुपए 10 रुपए पे आ जाएगा, एकदम नहीं आएगा। जी जी कुछ लोग कहेंगे यार क्यों कट करिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब देखेंगे कि दूसरा एक दुकानदार जो है वो उसने कर दिया 5 रुपए का, तो उसका 70 रुपए वाला कौन खरीदेगा, हालांकि 5 रुपए वाले अच्छा देगा। तो ये सूरत हाल है कि जमीन की कीमतें, सर साहब का जवाब मैं दे रहा हूँ कि कीमतें जो है ना इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डाउन होंगी। डॉलर कीमतें जो है ना इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि टैक्सेस बढ़ते हैं तो कीमत बढ़ती है, टैक्स खत्म होंगे तो कीमतें बढ़ेंगी नहीं, वो तो एक तो कम हो जाएगी ना, फिर आगे से नहीं बढ़ेगी। जो आज ये किताब 100 रुपए की है तो 100 साल बाद भी ये 100 रुपए की होगी, क्योंकि इसने बढ़ना ही नहीं, टैक्स नहीं लगना, किसी चीज ने नहीं बढ़ना। इसी तरह आप एक तो ये कीमतों का आ गया ना, कीमतों हर चीज में कीमत कम होगी, हर चीज की बार बार जब टैक्सेस खत्म
हो गए सारे जो दूसरा कीमतें नीचे आ गई। सॉरी दूसरा पॉइंट जो मैंने लेना था इस बात आपके साथ लिए कि दूसरी कीमत तब बढ़ती है जब शॉर्टेज होती है चीज। जी जी, अदरवाइज तलब शॉर्टेज और रसद का जो मामला है वो, हाँ सप्लाई एंड डिमांड को अगर वो गवर्नमेंट पूरी रखेगी, इतनी गंदम होगी, इतनी चाहिए होगी, तो गंदम बढ़ेगी नहीं। फिर गवर्नमेंट का तीसरी चीज है, गवर्नमेंट का किसी रेट पे किसी प्राइस पे कोई दखल नहीं होगा। मेरी चीज है, मेरा मैंने ये बनाया है, मैं 100 रुपए का बेचता हूं, Who can stop me? और किसी को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन ज़ाहिर कंपटीशन में जब आऊंगा तो मैं 1000 रुपए का तो नहीं बेच सकूंगा, जी जी लेकिन इस पे अगर सोने के पत्ते लगा दूंगा तो फिर 1000 का भी बेचेगा। जी जी, तो इसीलिए हर चीज के लिए कीमतें डाउन होंगी। कीमतों में इतना फर्क है, आप पिंडी से आए, मुल्तान से आए ना, तो शुरू में ऐसा हो कि बहुत सारे आपको दुकानें फर्नीचर की, फिर लाख रुपए फिर फर्नीचर, फिर उस पे चले जाए करोड़ रोड पे, वहां पे फर्नीचर की दुकानें, फिर गुलबर्ग में डिफेंस में आ जाए। अब 1500 का सोफा 1 2 3 सीटों वाला बाहर मिल रहा है, मुल्तान रोड पे वो 5000 का हो गया है, और मकरोड़ रोड पे आके वो 15-20 हजार का हो गया है। डिफेंस में वो 1.5 लाख का हो गया। साहब बात है जो तो अपने चीज एक ही है, जी जी, इसलिए कीमतों को डाउन होंगी, डॉलर कम होगा, डॉलर एक साल में 50 रुपए पे आ जाएगा। जब जो आमदन होगी तो जाहिर आमदन बात है, होगी तो मलिक के साथ साथ खान साहब ने आपके सवालों के जवाब दिए हैं। ठीक है। जब तमाम टैक्सेस खत्म होंगे तो महंगाई खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। जाहिर बात है जो एक चीज हम गाड़ी 25 लाख की लेते हैं, जी। 5 लाख तो उस पर टैक्स ही है, जी उससे भी ज्यादा है। जी, तो उससे उस कीमतें कम होती जाएंगी तो वो जाहिर बात है महंगाई कम होगी। लेकिन इसमें जो मामला है, खान साहब कहते हैं जो 20% परचेज टैक्स है वो सब अदा करेंगे, जितना कुछ जी। खर्च करेगा उतना ही वो अदा उसका करेंगे। 20% देगा। इसमें हमारे को दोस्तों के खिलाफ 1-2 प्रोग्राम में पीछे खिलाफत तो भी हुए थे, जिनका जी। कहना था इक्वल आप सबके लिए राज नहीं कर सकते, रब का कानून भी सबके लिए बराबर एक जैसा नहीं है, किसी कोई गरीब है कोई अमीर है, वो स्टेप बाय स्टेप इस तरह है, तो आप सब पे एक जैसा टैक्स वसूल नहीं कर सकते। जो लोगों के इख्तलाफात है, आप इस इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता। जो खान साहब की बात है, इन्होंने एक क्राइटेरिया, एक फार्मूला बना दिया है कि अगर ये मैंने ये पेन ये खरीदने हैं तो मुझे भी इसका 20% टैक्स देना है, जी जी, आपने भी खरीदना है तो 20% टैक्स देना है। इसमें वो जो आप फरमा रहे हैं ना कि अल्लाह ताला का जो कानून में कुदरत है वो इस पे इस तरह नहीं होगा। वो एक चीज की वैल्यू है ना, जी एक चीज का है, मैंने उसे हर एक आदमी को टैक्स देना है, और वो ही टैक्स हुकूमत की आमदन है, जिसे कि मौलाना इफ्तार साहब फरमा रहे हैं कि 100 खरब रुपया होगा सालाना, और उसके बाद 5 साल के बाद 500 खरब होगा। तो वो इस लिहाज से मैंने पहले शुरू में आपसे अर्ज किया था कि हमारा जो है ये निज़ाम जो है टैक्सेस का, इसको हम चैनलाइज नहीं कर सके। जी, अब आप देखें, आप माशाल्लाह साहिब सरबत लोग हैं, मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट को टैक्स देते कतराता हूँ। डेफिसिट जो वो ट्रस्ट है उस इसीलिए वजह से है। इसी वजह से है जी। मैं कहता हूँ कि भाई मैं जो आप मुझे, और फिर उसके बाद मुझे उसके उस टैक्स के बदले में मुझे सहूलतें क्या देते हैं? जी जी, ना मुझे हेल्थ के लिए मुझे प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है जी जी, अपनी हैसियत के मुताबिक। एजुकेशन के लिए मुझे मैं समझता हूँ कि मेरा बच्चे को, वो बच्चा मेरा सरमाया है, उसने कल को मेरा नाम लेके चलना है, उसने मेरे नाम से पहचानने जाना है, और मैंने उसके नाम से पहचानने जाना। तो मैं कहूँगा कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए। ये तो इनके सिस्टम के मुताबिक जो खान साहब ने लिखा है, जितनी तालीम वो कह रहे हैं, जिस तरह बच्चों को प्राइमरी स्कूल में 5 जुबानें सिखा दी जाएंगी, तमाम खेल बच्चों को मिलेंगे, उनकी जो एक्टिविटी है वो
स्टैंडर्ड स्कूलों से बढ़ जाएंगी तो तब एजुकेशन तो सबको बेहतरीन होगी। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये लेकिन ये तब होगा जब हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज होंगे। जी जी, रिसोर्सेज तो वो आप बता रहे थे, रिसोर्सेज जब वो कहते हैं 100 खरब आमदन होगी, उनकी एक फिगर है इफ्तिखार खान साहब की, वो कहते हैं जो 5 करोड़ लोग हैं वो 20,000 रुपये खर्च करते हैं माह। बिल्कुल जी, 1 करोड़ बंदा है वो 1 लाख तकरीबन खर्च करता है जी करता है। 10 लाख बंदे हैं जो वो 1 लाख से 10 लाख तक खर्च करता है। चलो हम मान लेते हैं फिगर इसमें कम ज्यादा हो भी सकता है, बिल्कुल लेकिन ज्यादा। जब हम अपने पाकिस्तान के अखराजात का तयन करते हैं, पाकिस्तान में टोटल स्पेंड कितना हुआ, हाँ जी। उसमें हमने 2017 की फिगर लगाई थी जिसमें 100 खरब, बाकी ज़्यादा हम अगर उसे 20% अगर उस पर टैक्स वसूल करते 100 खरब से ज़्यादा आमदन होनी थी एक फिगर के मुताबिक। इनको ये आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो खर्च होता है पाकिस्तान में उससे वो तो आगे पीछे नहीं हो सकता। नहीं हो वो सकता। 2017 की फिगर थी, आज हम 2019 में खड़े हैं, ठीक है। इसके बावजूद लेकिन असल में जो मसाइल हैं इसको राज करने में आप जिस तरह सियासत अपने अपने मफादात सबको अब वो नज़र आते हैं, इसके लिए तो ईमानदारी शर्त है। ईमानदारी शर्त किस तरह मुमकिन है उसको लाया जा सकता है? ईमानदारी शर्त इसलिए मुमकिन हो, इस तरह होगी कि मैं अपने मन को मार दूं। जी जी मैं अपने मन को मार दूं, मैं ये कहूं कि मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूं और बाकी भी शहरी मेरी तरह के ही हैं, जी जी उनका स्टैंडर्ड भी मेरा जैसा ही है, तो मैं उसमें अपना जो खर्च जिसे मैं हम कहते हैं लेविश खर्च से कह लीजिए, जी जी उसे मुझे खत्म करना पड़ेगा अपने खर्च में से। जी जी कि जब मैं हर बंदे के अपने जो हकूक हैं उनको मद्देनजर रखना होगा, जी हाँ, उसकी जो मैं- जरूरियात उसको मद्देनजर रखना होगा। मैं सुबह ये प्रोग्राम देख रहा था दुनिया चैनल पे, आपने भी देखते होंगे, अनीक अहमद साहब का प्रोग्राम होता है सुबह बखैर के नाम से, 7 से 8 बजे चलता है। आज उसका उन्वान था इंतशार और सब्र। उसमें उन्होंने तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा तशरीफ लाते हैं, वो अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपने अपने मसले के मुताबिक बयान करते हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मुल्क में अदल कायम नहीं होगा, जी जी और अदल में मैं भी शामिल हूँ, मसलन मैं अपने सर्वेंट से अदल करता हूँ कि नहीं करता, जी जी, जब तक जिस मुआशरे में अदल इंसाफ नहीं होगा वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और दूसरे मुझे अपनी, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि हमें अपनी ख्वाहिशात कंट्रोल करना पड़ेगा, जी सब्र करना पड़ेगा, जिसे दूसरा अनुमान सब्र है, जी जी सब्र करना पड़ेगा। हम जब तक ये नहीं लाएंगे अपने फितरत में, अपनी नेचर में, उस वक्त तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। और वो खान साहब ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है इसमें, बड़े अच्छे, और हर पहलू पे, हर टॉपिक के। अच्छा इसरा साहब, आपने कोऑपरेटिव हाउसेस सोसाइटी से आपको ताल्लुक है, आपने तो मकान लोगों को बना के भी दिए हैं, जगह भी दी है, क्वाइल भी किए हैं। ये 50 लाख जो इमरान खान साहब कहते हैं मकान बन जाएंगे, जिस तरह खान साहब ने लिखा है 7 जी। लाख का मकान, इनमें आपको क्या मुश्किलात नजर आती है? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मलक साहब। जी, उसमें जी सबसे पहले तो मकान के लिए बेसिक चीज़ है ज़मीन। जी जी, वो तो उन्होंने कह दिया 6,000 रुपये मरला हमने जी लेके आना। जी नहीं, वो जब तक गवर्नमेंट ज़मीन प्रोवाइड नहीं करेगी, जी जी प्राइवेट सेक्टर पे ज़मीन नहीं होगी, पब्लिक सेक्टर पे ज़मीन होगी, उस वक्त तक ये 7 लाख में मकान नहीं बन सकता। ठीक है। दूसरे, खान साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि अब ये हम आजकल भट्टों से ईंटें लेते हैं, और इस वक्त तो शायद मेरे ख्याल में 15,000 रुपए की हजार अव्वल ईट वो भी नहीं मिलती, 15,000 वो भी नहीं मिलती। ठीक है जी। उसमें खान साहब ने कहा जी कि हम मशीन के जरिए बनाएंगे, और मशीन कैसे चलेगी? ये जो हमारा कूड़ा क्रिकेट है, जी जी इसे हम जब जाके एक जगह डंप करेंगे
پھر اس میں ایک پائپ بچھائیں گے، اس میں سوراخ ہوں گے اور اس سے وہ گیس نکلے گی، اس سے شعلہ نکلے گا، اس سے آپ یہ وہ مطلب لوکل کنزمپشن کے لیے وہاں پہ بجلی ہوگی. اور یہ نظام اس وقت ابھی قائم ہے کئی جگہ پہ کہ لوکل کنزمپشن کے لوگوں نے اپنے لیے بنایا. مثلاً یہ بایو گیس ہے، جی جی یہ لوکل کنزمپشن ہی ہے جی جی کہ آپ جو آپ کے جانوروں کا فضلہ گوبر ہوتا ہے اس سے آپ اسے ڈمپ کرتے ہیں، اس سے آپ اس سے گیس بناتے ہیں. گیس بنانے کے بعد آپ اس سے وہ اپنی انڈسٹری، لوکل انڈسٹری جی جی وہاں کی یہ افتخار خان صاحب نے کتاب میں جو دکھایا زیادہ تر وہ عوام کو حکمران جی بنانا چاہتے، عوام خود کاروبار کرے، خود بزنس کرے، بجلی جی پرووائڈ کرے لوگوں کو، بزنس جی جب اس کا ایک دفعہ خرچ ہوگا بعد میں اس میں آمدن انکم شروع ہو آمدنی جائے گی، شروع ہو جائے آمدن گی. شروع ہو جائے جی گی. جی اس سے تو بہترین مواقع تو عوام کو ملیں ہاں گے، جی، روزگار بھی ملے گا اور لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ جو ہے بیسک مکان بنانے کے لیے جو چیز میٹیریل ہے، جی جی اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے، بجری ہے، سریا ہے، یہ بھی کسی کنٹرول سسٹم کے تحت ہونا چاہیے. جی جی خان صاحب کا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سب پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جائے جی اور وہاں سے آئے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی فورس نہیں ہوگی، جی جی اسپرٹ نہیں ہوگی. فورس اور اسپرٹ کو کون سی ہوگی؟ یا حکومت، یا پھر جو انہوں نے کہا ہے کہ اس سیکٹر میں جو ہم ایک ایلڈرلی کونسل بنائیں گے وہ کنٹرول کرے گی اس کو قیمتوں، میں لفظ استعمال کروں کنٹرول کرنے کا، جی جی کنٹرول کرے گی تو یہ 7 لاکھ میں مکان بن سکتا ہے، ادروائز نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. بالکل ٹھیک ہے میڈم. موجودہ دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، مہنگائی کے دور میں، آپ کیا سمجھتی ہیں معاشی دھماکہ ہو سکتا ہے؟ جیسے افتخار خان صاحب کہتے ہیں عام بندے کو 5 لاکھ کا مکان بھی مل جائے گا، 2 روپے کی بجلی بھی مل جائے گی، سکول کی تعلیم بھی، ایجوکیشن سب سے بیسٹ ملے گی، صحت بھی سب سے بیسٹ ملے گی، اور کوئی پریشانی بھی کسی کو نہیں ہوگی، روزگار بھی سب کو ملے گا. ممکن ہے؟ جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایک ٹیم بنتی ہے نا تو نیک نیتی سے جی وہ جی اپنی عوام کا احساس ہوتا ہے. جیسے ابھی جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی یہ اپنی خواہشات کو آپ ختم کریں اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو بالکل اپنے جیسا دیکھیں کہ اگر ان کا بچہ پڑھ رہا ہے تو میرے بچے کی ضرورت ہے تو ان کی بھی ضرورت ہے. جی جی یہ ایک نیک نیتی کے ساتھ اگر ٹیم ایک بنا دی جائے اور اس پہ اگر ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جائیں گے تو یہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے اس میں غربت کو ختم نہیں کیا جا رہا، غریب کو ختم کیا جا رہا ہے. جی جی اس وقت وہ خان صاحب نے کہا تھا آنے سے پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، اور عوام اتنی خوش ہو گئی کیونکہ اب ہماری نیچر ہے نا، جی جی اب وہ سو ہمیں آزمانا چاہ خواب رہے تھے دیکھنے کا جی، ہمارا حق ہے، لیکن خواب پورے دکھا نہ رہے ہو ہیں ٹوٹ جائیں وہ علیحدہ ایک بات ہے. کنٹینر پہ چڑھ کے ان کو خواب دکھا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیں اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیو جنریشن ہمارے اسٹوڈنٹس نے ان کو سپورٹ کیا. جی جی تو کتنے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے جاب دی؟ جی جی کسی کو بھی نہیں دی. سارے اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ رول رہے ہیں، ووٹ دینے والے اس وقت ذلیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کسی کی تعلیم کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں سوچا. آپ جا کے ہاسپٹلز میں دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں، اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں. اس سے پہلے پھر بھی بیٹر تھا، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بہت اچھے تھے، جی لیکن بہت بیٹر تھا. لوگ سکون فیل کرتے تھے، لوگوں کو لگتا تھا ہمارا علاج ہوتا ہے. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، اس وقت غریب بندہ میڈیسن نہیں خرید سکتا. اس وقت اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ رول رہے ہیں، ایک غریب بندہ اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا. تو خان صاحب کیا تبدیلی لے کر آئے؟ یہ غریب کو ختم نہیں کر رہے، یہ غربت کو ختم نہیں کر رہے، غریب کو ختم کر رہے. وہ کہہ رہے تھے میں غریب نہیں رہنے دوں گا. اور اگر یہ جی جی ماحول، یہی حالات ہمارے ملک کے چلتے رہے تو 1 سال کے بعد غریب ہوگا ہی نہیں، غریب ہی نہیں ہوگا. آپ افتخار خان صاحب کے جو سسٹم ہے جی اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ میں یہ بالکل معاشی اس سے دھماکہ ہو ایگری سکتا ہے؟ کرتی ہوں، بالکل ایگری کرتی ہوں. اور ایسے بلکہ میں یہ چاہوں گی، میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے تھرو کہ اس سوچ کے بہت سے لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں ابھی جو یہ سوچ رکھتے ہیں. ان کی بک میں جو میں نے پڑھا مجھے بہت اچھا لگا. تو ایسی سوچ کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے.
जी। कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। इमरान अल्लाह खान ताला साहब ने ने टेक्नो क्रेडिट तो से इंसान इकट्ठे को, करने शुरू कर दिए हैं, हाँ। लेकिन वो तब्दीली लाए ना लाए ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इकट्ठे तो किए हैं टेक्नो क्रेडिट्स, मुआशी पॉलिसियों में के हवाले से भी, दूसरे टास्क नहीं, फोर्स के हवाले से भी। उसका क्या फायदा? देखें जी, 50,000 घर देने थे इन्होंने, जी ठीक जी, है, 50 लाख 50 लाख घर देने थे जी, लेकिन उस पे भी टैक्स लगा दिया आपने। 50 लाख घरों पे टैक्स, ना सिर्फ उनके फॉर्म ले, उनको फिल करे, कुरानदाजी होगी भाई। वो गरीब बेचारा तो वो रोटी रोजी वहाँ कमाए तक के कहाँ इसके तक घरों के पहुँचेगा चक्कर कि उसको लगाए, फाइल करने क्या के लिए? करे वो जी, गरीब बेचारा, इसके वो फार्म के चक्कर लगाए, कुरानदाजी में जाए कि अपने बच्चों का पेट पाले, क्या करे? गरीब के लिए तो ये भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है इफ्तिखार खान साहब, सिस्टम से तो लोग आपकी इत्फाक करते हैं, लेकिन इस सियासी और मुआशी जो इस्तेकाम मुल्क में चल रहा है, अफरा तफरी का आलम है, महंगाई का जो तूफ़ान है वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा, ना डॉलर रुक रहा है ना महंगाई रुक रही है। हुकूमत नारा भी लगाती है, आप किताब में जो 50 लाख मकानों को भी हुकूमत ने नारा लगाया, दरख्तों को भी नारा लगाया, आपकी काफ़ी चीज़ें तो हुकूमत ने ऐलान तो किए वज़ीर आज़म साहब ने, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो आप 20 साल से इस मेहनत को जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी नज़र में किस तरह बेहतरी किस तरह मुमकिन है, तो किस तरह इसको अडॉप्ट किया जा सकता है? एक तो बात मोहतरमा ने सही कही कि जो गुलाबी ज़हन के लोग हैं, जिन्होंने जैसे मैंने कुछ सोचा है, और भी बहुत सारे लोग जी जी, बहुत सोचते होंगे इस मुल्क में, मार्केट में आते रहते हैं, बातें करते हैं, सवाए इनके ये एंकर वेंकर जो हैं, मैं इनसे दी इतफाक करता, ये तो सिर्फ नहीं वो तो अभी जिन्होंने पढ़ाई नहीं सिस्टम को, जिनकी नज़र तो में लिहाजा मौजूद हालात में। असल में मैंने जो है ना, असल में लोगों को यकीन नहीं है कि गवर्नमेंट पैसे देगी वो हमें कुछ मदद करेगी। मेरा सिस्टम शुरू ये होता है कि मैंने अगर पहले सिस्टम में ये है कि मैंने अगर ये सड़क यहाँ से यहाँ तक बना दी है, ये मोटरवे, जी जी, उसे मैंने टैक्स लगा दिया, उसको फूट पे उसके पैसे को वापस करने के लिए मेरा सिस्टम ये है कि ये आपका 100 खरब में से लगेंगे और आपका बुनियादी हक है वो हमने आपको दे और दिया, आपको आपके पैसे आप ही तो दे दिए हमने जी। सड़क की फॉर्म में, या आपके पैसे जो हम कहते हैं कि एक जमींदार को हम मुफ्त खाद देंगे, मुफ्त उसको बीज देंगे, मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त स्प्रे देंगे, यही चीजें होती हैं जी जी, जमींदार के लिए ये यही है। सब मुफ्त। और एग्रीकल्चर मुल्क मैंने ये तरीका बताया कि अभी वो इतना खुश हो जाएगा कि वो फिर खुशहाल होगा। इसी तरह लेकिन हमने जो उसको देना है ना, ये फ्री, ये उसी के पैसे से देना है। जी जी, पैसा उसी का होगा, उसी पर खर्च वो होगा। जो करोड़ों है ना ये जमींदार, उन्होंने भी जब 20% दिया ना, तो उनका पैसा इससे बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा। हम तो थोड़ा इन्हें वापस करके उनको खुश करेंगे, जी जी, लेकिन उनको पैसा जाएगा। हॉस्पिटल बनाएंगे तो लोगों को पैसे से बना के हम किसी सीनियर डॉक्टर को फ्री दे देंगे। जी जी, स्कूल बनाएंगे अच्छा 150 कनाल पे A1 किसी का, जिसमें एक भी घास का जो है ना वो भी सूखा नहीं होगा, हरियाली होगी, हरियाली होगी, तो उसको बना के फिर एक सीनियर उस्ताद को उसके वाले कर दिया फ्री जाए। दे देंगे। वो उसको 3-4 लाख रुपए महीना उसमें से कमाएगा, वो डॉक्टर भी 3-4 कमाएगा, जहाँ पे उसके उस्ताद होंगे वो 50-60 हजार रुपए महीने पे होंगे, ट्रेंड होंगे। अच्छा एक चीज और है मेरे सिस्टम में, ये जो सिस्टम चल रहा है ना, मैंने इसके लिए 20 खरब रुपए सालाना अलहदा रखे हैं कि ये इसी तरह चलता रहे। ठीक है, इसमें जो किसी ने शुरू किया हुआ है, पैसे गवर्नमेंट दे दी है, काम शुरू किया हुआ है, अब उसको पैसे अब नहीं है जी, तो अब दिन नहीं मिलेंगे, वो चलते रहे। फिर ये जो टाटो वाले स्कूल है चलते रहे, फिर ऐसा ऐसा जब हमारे स्कूल वैसे आधे तो एक महीने में इस फॉर्म में आ जाएंगे जिसकी मैं बात करता हूँ, जी जी, बाकी आधे तो बनाने पड़ेंगे ना। तो आधे जो है इसको कहते हैं मैथमेटिक्स कॉलेज जो है, जी जी, ये भी गवर्नमेंट का है ना, इसके 4 स्कूल बन जाएंगे इसके इसी बिल्डिंगों में। इसी तरह और भी अच्छे अच्छे बाहर हैं स्कूल बड़े बड़े, और जिसपे जमीन कम है और जमीन खरीद के 150 कनाल करेंगे, उसको सारा सेटअप करके यही पे डेप्टी कमिश्नर करेंगे हमको। इसकी सभी काम एक दफा पॉइंट कराया था कि ये सेक्टर कैसे बनेगी। भाई आप एक ऑर्डर करना है डेप्टी कमिश्नर को, हफ्ते बाद आपको नक्शे हल्के बना के आपके सामने ला के रख देंगे।
एक सैंपल आपको दे देना, ऐसा नक्शा, ये कलर लगाने हैं, ये करना है, उस आपको बिठा करके बुक बना के दे देंगे, लो जी ये है। ये मुश्किल नहीं है। बात वही है कि जब काम की नीयत अच्छी हो, जी जी लोगों को होता हुआ नजर आएगा। मैं कहूँगा ना कि आपको नौकरी मिलेगी, तो अगर कल जाके मार्केट में वो आदमी देखेगा तो उसे वाकई नौकरी नजर आएगी, तो वो कहेगा यार ये तो तजुर्बा हो गया। और जी, वो जी। तरीका यही है कि गवर्नमेंट काम कोई नहीं करेगी, हर काम पब्लिक खुद करेगी। जी जी गवर्नमेंट सिर्फ वॉच करें। क्वालिटी उसकी वॉच करेगी। मुझे अभी तक याद है जब हम छोटे से थे तो 8वीं 9वीं जमात में राना गेट में पढ़ते थे, किसी कोई एजुकेशन का आया बड़ा अफसर आगे पीछे बैठा, वो चेक कर रहा इंस्पेक्टर। है। जी जी मेरे दिन में तो आया कि मिनिस्टर एजुकेशन आया हुआ बैठा, नीचे चेक कर रहा है कैसा पढ़ा रहे हैं। जी जी अब है हमारे अब तो मिनिस्टर भी आता है जब भी बच्चों को पता नहीं चलता नहीं, मिनिस्टर कोई मेरा मतलब है है। कि वो काम उसका वही है। जी जी इस वक्त तो वो ट्रांसफर ही करता पाया, ये करता पाया, वो मास्टरबाजी है। नहीं, इस वक्त मौजूदा हालात में तो हम इफ्तिखार खान साहब शॉर्टकट के रास्ते हमने इख्तियार किए हुए हैं। जो हर शख्स को देख लो वो शॉर्टकट में है। मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ। मलिक इसरार साहब खान साहब ने जिस तरह बड़ी तफसील से कहा, 20 खरब उन्होंने उस इदारों के लिए रखे हुए जो इदारे बंद होंगे, अदालतें बंद होंगी, FBI के अफसरान बंद, वो इदारे बंद होंगे, लेकिन उन लोगों की तनख्वाहें हुकूमत पे करती मिलती है। है। एक भी किसी को unemployed यानी कि नहीं पे या नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनकी ड्यूटियां मुख्तलिफ हो जाएंगी। पुलिस के पास से तफ्तीश का सिस्टम वापस ले लिया जाएगा। सिर्फ वो उनको सिर्फ आर्डर होगा आपने इस बंदे को गिरफ्तार करना, और तफ्तीशी का उनके पास नहीं होगा। जिस तरह आप अदल की कह रहे थे, जिस मुआशरे में अदल नहीं होगा, अदल जिस मुआशरे में आ जाए, इंसाफ जिस मुआशरे में आ जाए, उसकी तरक्की को कोई रोक सकता है? और आपको जो कबाहत है वो आपने 1-2 मिनट में हम तजवीज़ देनी है। प्रोग्राम का हमारा टाइम ख़त्म होता जा रहा है। वाकई ऐसा मुमकिन है? इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सकता है? जी बिल्कुल पूरा तकाज़े पे किया जा सकता है, जबकि हमें उस पे एतमाद हो। जी जी जो हमने एल्डरली काउंसिल बनानी है उस पे हमें सबको एतमाद हो। उसके लिए हमें फिर वही शुरू से जाना पड़ेगा, उन गैदरिंग्स करनी पड़ेंगी, उन्हें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। जी जी जो खान साहब ने लिखा है ये इसकी तशहीर करनी पड़ेगी। जी जी खा वो मसाजिद के ज़रिए आप करें, खा वो किसी कम्युनिटी सेंटर के ज़रिए करें, खा वो आप किसी और जगह को करें। पहले लोगों को इसका, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि हम कानून या कोई ज़ाब्ता लागू कर देते हैं ऊपर से, मुझे उसका पता नहीं होता। नहीं मलिक साहब, आपकी जितनी माशाल्लाह उम्र है, आपने काफ़ी रिसर्च भी की है, दुनिया को देखा भी है, तजर्बात भी आपके हैं। जो साहबका काजी इंसाफ करते थे, एक इलाके में जो काजी होता था वही फैसले करता था, वो लोग खुश भी रहते थे, अमन भी था और तरक्की भी करते थे। आज वो सिस्टम, उससे हम बहुत पीछे जा चुके हैं। आज जजेस भी हैं, अदालतें भी बहुत हैं, थाने भी बहुत हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे भी बहुत हैं, इसके बावजूद इंसाफ किसी को नहीं मिलता। जी वो सबसे बड़ी, जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की, सबसे बड़ी बात ही उसमें ये है कि क्या मुझे आपके इदारों पे इत्मीनान है? जी जी मुझे आपके इदारों पे इत्मीनान नहीं है। फिर मुझसे मुराद है एक आम आदमी का। जी जी हमें वो इत्मीनान जो है उसके लिए लोगों को अच्छा, बताना जब सेक्टर पड़ेगा। में से जजेस होंगे, सेक्टर में से फैसला करने वाले होंगे, जी, सेक्टर वही में होंगे, तफ्तीश करने वाले होंगे, वही तो मुमकिन है इंसाफ मिल सकता है उससे। हो बिल्कुल इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि देखिए जो अगर मैं और ये हम पड़ोसी हैं तो मेरे हालात आपसे बेहतर ये जानते हैं। जी जी मेरा रहन सहन, मेरा मुआशरा, मेरे कैसे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करना है, ये कहेंगे कि ये कैसा आदमी है, मोहल्ले में कैसा है, फैमिली में कैसा है, तो ये मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें जो है वो जो एल्डरली बड़े मुश्किल फैसले और अपनी नीयतों को साफ करना पड़ेगा। नीयत अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैडम आपको बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार खान साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने बातें भी सुनी। इस मौजूदा दौर में, नफ्सा नफसी के दौर में भी आज भी ईमानदार और इनकलाबी सोच रखने वाले आज भी मौजूद हैं। आज भी सिस्टम को बदला जा सकता है, सिर्फ नीयत और सिमत का तयन दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।